Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I welcome you all for the TYBSc Inorganic Chemistry lecture, and that we have already started with unit 3, that is chemistry of inner transition elements. So friends, so far now we have seen the position of inner transition elements in periodic table, that is lanthanide and actinide series, their electronic configuration, okay, then their oxidation states. Then we have seen very major part of lanthanide contraction. In that we have discussed about many consequences of lanthanide contraction which are seen because of the size which is decreased from lanthanum to lutetium, that is called as lanthanide contraction, and because of that various consequences have taken place, that is basicity of lanthanide. Then we have also discussed about the characteristic of hafnium. Okay, then we have seen yttrium, similarities between yttrium and lanthanide. Okay, then we have also discussed about high densities of post lanthanide elements and many more. Now we have already discussed about the next characteristic of our lanthanide series, which was magnetic and spectral properties. Okay, so in that we have also discussed about the color. Magnetic and spectral property give rise to the color of the lanthanide. So in that we have also seen that the lanthanide uh, complexes, they show color intensity which increases when number of unpaired electron increase from 0 to 3 in the f orbital. So as the number of unpaired electron increases from 0 to 3, the color become dark. Okay, which color? Color of lanthanide complexes. Okay, and after that again 4 to 7 the color becomes light. So up till now we have discussed in our last lecture. Now we will see the next one. So now we will discuss about the magnetic properties of lanthanides. Okay. So what is lanthanide, that we have already seen. Now what are magnetic properties, that we will discuss. So magnetic properties of a substance is because of the fact that each moving electron is a micromagnet. What is the meaning of this? That we all know that electron always moving and it is not stable one. Okay, so whatever spinning or revolving orbital or object is there, that act as a micromagnet. Okay, what is magnet? That we know that it has two poles, north and south pole. Okay, and whenever you take some compound and keep it in a magnetic field, it will also show some properties. Okay, so that is the speciality of the magnet, that whenever you keep other object in a magnetic field, it will always show certain properties. Okay, so first of all you consider what is magnetic property of a substance. कोई भी substance magnetic property कब दिखाता है और क्यों दिखाता है? Because every substance has electron and all electrons act as micromagnet. Okay, इसका meaning क्या है कि whenever you keep one magnet and bring another substance in presence of magnetic field, both act as magnet, right? मतलब जो आप मैग्नेट रखे हो वो एक मैग्नेट है, और जो दूसरा सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में ला रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ मैग्नेट, बिकॉज दैट सब्सटेंस कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड एवरी इलेक्ट्रॉन एक्ट एज माइक्रोमैग्नेट. आपको समझ में आ रहा है शायद कि बोथ विल एक्ट एज मैग्नेट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट the magnetic property of any substance is because of its magnetic moment, which is due to combined effect of spin and orbital moment of electron. Okay, so magnetic property or magnetic moment of any substance is, now we know that it is because of electron and it is because of spin and orbital moment of electron. मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने अराउंड भी क्या करते, स्पिन करते, रिवॉल्व करते हैं एंड दे हैव ऑर्बिटल मोमेंट. मतलब वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. सो द मैग्नेटिक मोमेंट उसे हम दिखाते हैं म्यू से. ओके, सो इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये फैक्ट आप अच्छे से ध्यान में रखो
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोमेंट. ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट वन, व्हेन यू प्लेस अ सब्सटेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट आइदर अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हर एक सब्सटेंस के अंदर उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास आते ही क्या करेगा, आइदर इट विल अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द अनदर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. अगर आपका सब्सटेंस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास आते ही अपने आप को पैरेलल अरेंज कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. और समटाइम दैट सब्सटेंस अलाइन इटसेल्फ अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. समटाइम क्या होता है, वो पैरेलल नहीं जाता बट जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट जाता है. दैट इज कॉल्ड एज डाईमैग्नेटिक बिहेवियर. आर यू गेटिंग दिस? अगर आपका सब्सटेंस पैरेलल अरेंज हो जाता है इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. और अगर आपका सब्सटेंस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते ही उसके अपोजिट अरेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर. ओके, सो ये कब दिखता है हमें, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस देन इट शोज डाईमैग्नेटिज्म. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल दैट अगर आपका जो सब्सटेंस आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जा रहे हो तो वो अगर उसके अंदर पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट विल शो डाईमैग्नेटिज्म. ओके, लेकिन इफ अ सब्सटेंस हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट विल शो पैरामैग्नेटिज्म. अगर आप जो सब्सटेंस ले रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाने के लिए, if it has unpaired electron then it will show paramagnetism. And we already know that the magnetic property of a substance represent the combined contribution of all electron present in a substance. मतलब सब्सटेंस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है. ओके, और उसकी जो प्रॉपर्टी है व्हेन इट कम्स इन इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, उसके अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन है दे विल शो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, तो हम लोगों को अभी ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों दिखाता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम. और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्यों दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम है, ऑर्बिटल मोमेंट है ना. स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप के ऊपर रिवॉल्व होते हैं और वो जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसका भी इफेक्ट होता है. ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट. और हम लोगों ने देखा कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड दे शो डाईमैग्नेटिज्म. डाईमैग्नेटिज्म मतलब क्या करेंगे, दे विल अरेंज देमसेल्फ अपोजिट, राइट, टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन दे विल अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म. आई होप यू हैव प्लेड दिस गेम इन योर चाइल्डहुड. हाँ, आपके पास मैग्नेट होता है और आप क्या करते हो, कोई भी आयन या कोई भी चीज़ आप उसके पास लेके जाते हो, देन यू विल ऑब्जर्व दैट दे विल शो सम काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी आर स्टडिंग. ओके, तो अभी इस सारी चीज़ों का हमारे लैंथेनाइड से क्या ताल्लुकात है, वाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट यू सी, मोस्ट लैंथेनाइड्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेंस दे शो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मतलब क्या है कि इफ़ यू टेक एनी लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स, ओके, लैंथेनाइड क्या करता है, दे विल ऑलवेज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लिगैंड, इट विल नॉट फाउंड अलोन. ओके, उसके साथ हमेशा कोई लिगैंड्स रहेंगे और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो ये जो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स है अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इट विल शो strong paramagnetic properties. Okay, so the ions like lanthanum 4+, then cerium 4+, they have 4f0 orbital or number of electron, therefore they will not have any unpaired electron and they will show what, strong
paramagnetic field. Okay, but there are some ions which have no unpaired electron, like lanthanum 4 plus, cerium 4 plus or lutetium 3 plus. They don't have any unpaired electron, therefore they will show diamagnetism. Okay, so the magnetic property of lanthanide are because of their unpaired electron. Okay, उनके अंदर भी क्या होता है, sometime they have unpaired electron, तो they will show strong paramagnetism. Suppose they have now completely filled or half filled 4f orbital, so there will be no unpaired electron and then they will show diamagnetism. Okay, so I hope you are understanding why lanthanides are showing magnetic property. Okay, उनके अंदर क्या है, electrons है, they can be unpaired or they can be paired, because of they can show paramagnetism or diamagnetism. Okay, now we will discuss that whether the properties, magnetic properties of lanthanide is similar or different than that of transition metal. Okay, transition metal हम लोगों को पता है, they are the d block elements, right? Transition metals are d block element. Okay, scandium, vanadium, nickel, zinc, they all are d block elements. और हम जो स्टडी कर रहे हैं लैंथेनाइड्स, दे आर f block elements. तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल. ओके, दोनों के प्रॉपर्टी अलग अलग है. कैसे अलग है देखो. In case of transition metals, the outermost electrons are in n-1 orbital. We all know, है ना, कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन n-1 ऑर्बिटल. ओके, और ये जो ऑर्बिटल है इट इज़ नॉट वेल शील्डेड. वी ऑल नो दैट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट इन f एलिमेंट्स, f ब्लॉक एलिमेंट मतलब हमारे जो लैंथेनाइड्स है उनमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर वेल शील्डेड बिकॉज दे आर इन n-2 ऑर्बिटल. I hope you remember all these things. कि in case of f or f block elements, the electrons are in n-2 orbital and therefore they are well shielded because of the surrounding orbitals. लेकिन in case of transition metal, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं देखो, n-1 ऑर्बिटल में, which is not well shielded. Hence these electrons get easily influenced by सराउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगैंड. अभी ये समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप ठीक से समझो. ये जो मेटल्स है कौन से, डी ब्लॉक मेटल, हाँ, वो भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. मतलब निकेल कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर वैनेडियम कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स होगा. हाँ, तो ये सारे क्या है, वो भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. लेकिन अभी देखो कॉम्प्लेक्स कैसे, आप कंसिडर करो सेंट्रली एक मेटल है और उसके सराउंडिंग सपोज 4 या 6 दूसरे लिगैंड अटैच हुए हैं. हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने मेटल के, दे आर नॉट वेल शील्डेड. ओके, उनके ऊपर कोई कवच नहीं है, कोई ढाल नहीं है. शील्ड का मीनिंग क्या होता है, ढाल, विच विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटर लिगैंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर वो वेल शील्डेड है तो वो बाहर की जो लिगैंड है उनको क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं. लेकिन अभी इन केस ऑफ मेटल, डी ब्लॉक मेटल, दीज आर नॉट वेल शील्डेड. देयरफॉर क्या हो रहा है, ये जो बाहर के लिगैंड्स है जिनके साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, दे विल नलीफाई देयर इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब क्या होगा, बाहर के जो लिगैंड्स है दे विल कैंसल द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल. ये जो अपना ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, उसका जो फील्ड है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन नलीफाई कर रहा है, बाहर के लिगैंड्स. एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्स द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल. अभी इसके वजह से क्या हो रहा है देखो, द 4th पॉइंट, दस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ ओनली स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन और ऑर्बिटल मोमेंट. तो इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल
ये जो ऑर्बिटल मोमेंट है उसको कौन कैंसिल कर रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स। ओके, आप समझ रहे हो ना, सेंट्रली अपना मेटल है और उसके बाजू में कौन है? देयर आर लिगेंड्स। लिगेंड मतलब कौन? जिसके साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो अगर अंदर के जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन अगर शील्डेड नहीं है तो उनका जो इफेक्ट है वो कौन नलीफाई कर रहा है, कौन कैंसिल कर रहा है? द लिगेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दिस केस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नलीफाइड बिकॉज ऑफ द लिगेंड्स। तो सिर्फ एक ही उसकी प्रॉपर्टी पिक्चर में आती है, दैट इज स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोमेंट दो था कि नहीं? तो ऑर्बिटल मोमेंट जो था वो किसने नलीफाई कर दिया? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स। तो बचा कौन? सिर्फ स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन। हेंस लास्ट पॉइंट देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। मतलब इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज ट्रांजिशन मेटल, मैग्नेटिक मोमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड उसका जो ऑर्बिटल मोमेंटम था, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था, वो कैंसिल हो गया है। ऑर्बिटल और स्पिन में से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो गया है बिकॉज ऑफ द लिगेंड्स, राइट, एंड ओनली स्पिन इज नाउ इन पिक्चर। तो हम लोग उसे कैसे दिखाते? सी, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज गिवन बाय म्यू एस। अभी ये एस क्यों लिखा हम लोगों ने? बिकॉज ऑफ स्पिन, है ना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन चला गया, सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पिन। सो वी आर गिविंग इट बाय म्यू एस विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ब्रैकेट एस एस प्लस 1, ओके, वेयर एस इज द टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आयन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसमें कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो चला गया बिकॉज ऑफ लिगेंड्स। तो S यहाँ पे क्या कर रहा है? S इज द टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज़ ओनली फॉर ट्रांजिशन मेटल, आप रखो याद। हाँ, एंड नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज N, पहले हम लोगों ने S के टर्म में लिखा। S क्या था? स्पिन ऑफ ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अभी म्यू वही हम किसके टर्म में लिख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट n प्लस 2, ओके। और अभी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो स्पिन है S, इट इज़ गिवन बाय S इज इक्वल टू n बाय 2, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। मतलब आप देख सकते हो बोथ फॉर्मूलाज आर नियर अबाउट गिविंग यू सिमिलर आइडियाज। S इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है ये किसके लिए है? दे आर ओनली फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। सो इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आप इतना ही याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट, ओके। दो चीज़ों के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल मैग्नेटिक मोमेंट नलीफाई हो रहा है, कैंसल हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिगेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज योर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेल शील्डेड, राइट, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, n-1 है, इट इज़ नॉट वेल शील्डेड एंड देयरफॉर दे गेट कैंसल्ड। तो अभी मैग्नेटिक मोमेंट में से अपना ऑर्बिटल मोमेंट चला गया। हु इज़ नाउ लेफ्ट? ओनली स्पिन। सो इन दैट केस इट इज़ गिवन बाय दिस टू फॉर्मूलाज। म्यू एस is given by square root of 4s s plus 1, and in case of unpaired electron mu is given by square root of n in the bracket n plus 2, okay। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? दिस इज फॉर ट्रांजिशन मेटल। सो व्हाट विल हैपन फॉर आवर लैंथेनाइड, व्हाट विल बी द कंडीशन, दैट वी विल सी in our next lecture, okay। Thank you.